वेयर वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था दैट इन 1942 द ऑथर लुइस फिशर मेट विथ गांधी। 1942 में जो ऑथर है लुइस फिशर वो गांधी से मिलता है। एंड ही आस्क्ड गांधी, और गांधी से उसने क्या पूछा था दैट हाउ ही मस्टर अप करेज टू आस्क द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया विदाउट एनी वेपन, कि गांधी जी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि बिना किसी वेपन का हेल्प लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि आप इंडिया छोड़कर चले जाओ। तो गांधी ने कहा ओके टुडे आई विल टेल यू हाउ इट ऑल हैव बीन हैपेंड, कि ये सब कैसे हुआ ये आज मैं आपको बताऊँगा। एंड आफ्टर दैट ही हैज स्टार्टेड द स्टोरी, और उसके बाद उन्होंने स्टोरी बताना शुरू किया। उन्होंने बताया दैट इट ऑल हैड स्टार्टेड इन 1917, ये सब 1917 में शुरू हुआ, और फिर शुरू की दैट इट वाज द मंथ ऑफ December year 1916. The annual convention of Congress party was going to be held in Lucknow. How many delegates were there? 2,301 delegates and many visitors. So while the meeting was going on, who came to Gandhi? A peasant whose name was, and he belongs to, he requested Gandhi to visit Champaran because just because of the landlord system a lot of injustice was going on. So at first Gandhi denied. And why did he deny? What reason he has given? That he had an appointment in Kanpur first. After that he committed to go to other parts of India. So Shukla didn't said anything. What he did? He simply followed Gandhi wherever he went. And after completing his all the meeting, when Gandhi came back to his ashram, Sevagram ashram, he followed him in his ashram also. And he always requested one thing to Gandhi. हमेशा क्या रिक्वेस्ट कर रहा था? Just fix a date. So Gandhi was greatly impressed by his determination. Gandhi had given him a date. और क्या बोला? That in this date just come and meet me in Calcutta. किस डेट पे? कलकत्ता में आइए, वहाँ मुझसे मिलिए, मैं आपके साथ चलूँगा। On the fixed date, Rajkumar Shukla met with Gandhi in Calcutta. After completing his all the meeting, both of them have taken a train and came to the city of Patna. In Patna, Rajkumar Shukla brought Gandhi to one of the lawyer house, and the lawyer was none other than Rajendra Prasad, who later became not only the president of Congress party but the first president of India also. And at that time Rajendra Prasad was not at home, but his servant knew Shukla as one of the poor human, poor farmer who always troubled their master to help the indigo sharecropper. So they allowed him to sit on the ground along with Gandhi, whom they took to be another peasant. उन्हें भी एक किसान के रूप में समझ रहे थे. So though Gandhi was allowed to sit on the ground, but Gandhi was not allowed to draw water from the well. Why? Because they didn't know Gandhi's caste, and they thought that if Gandhi was untouchable, then what would happen? कि अगर गांधी जी अनटचेबल हुए तो क्या होगा? अगर अछूत हुए, just suppose if he was drawing water from the well, and if even a single drop of water fell into the well, then the entire source would be polluted. So after coming to Patna, what was the first decision which Gandhi has taken? कहाँ जाने का डिसीजन लिया था? Yeah, he decided to go to मुजफ्फरपुर first. अब राठौर तो यहाँ बैठे हैं, आपके नाम से एंट्री कॉल कर रहा है. So simply he decided to go to मुजफ्फरपुर first. उन्होंने डिसाइड करा कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर जाएंगे. And why he wanted to come to मुजफ्फरपुर? Just to get more and complete information. And before coming to Muzaffarpur, what he did? He sent a telegram to Professor J.V. Kripalani, with whom he met at Tagore Shantiniketan School. On which date Gandhi came to Muzaffarpur? On 15 April 1917 at midnight. But he didn't stay at the home of J.V. Kripalani. He stayed at the house of Malkani, and he called it as an extraordinary incident. Now the news of Gandhi's arrival and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and Champaran.
and people started coming to see their champion. People are coming on their foot or whatever convince they are. And Gandhi called all the lawyers. So the lawyers just briefed Gandhi about their cases and they told Gandhi about the fee also. And as soon as Gandhi came to know about the fee, what did he do? He chided, scolded the lawyers for collecting the big fee. And after that he come to the conclusion that now we should stop going to the law court. और कि आज के बाद हमें कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए. क्यों? Because taking such cases to the court does little good. Where the peasants have been so crushed and fear stricken, and the real relief for them is to be make them free from fear. इनके लिए real relief ये होगा कि हम इनके दिल में जो ब्रिटिशर्स को लेके डर है उस डर को खत्म करते हैं. So up to here we have discussed. यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ था, है ना बेटा? इसके आगे से आज हम लोगों को करना है तो आज यहाँ से करना था मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड. ओके करो मैं तो देख के लाना चाहिए ना घर से जब चल रहे हैं. यू आर कमिंग टू स्कूल सो यहाँ कुछ सो मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड was divided into big states owned by Britishers and worked by Indian tenants. अब उस समय चंपारण में मुजफ्फरपुर में क्या था? द मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड. व्हाट डू यू मीन बाय अरेबल लैंड? फर्टाइल, जो ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन थी, फर्टाइल ज़मीन थी. इट हैज बीन डिवाइडेड टू बिग स्टेट्स. उसको कैसे बांटा गया था? बिग स्टेट्स, बड़े बड़े पार्ट्स में बांट दिया गया था. एंड ओन्ड बाय, और ओनर कौन बन गया था उसका? मालिक कौन था? ब्रिटिशर्स वर द ओनर. ब्रिटिशर्स उसके मालिक बन गए. एंड हु वर्क ऑन द लैंड, उस पर काम कौन करता था? इंडियन वर्क देयर. एंड हाउ इंडियन वर्क देयर? एज ए टीनेंट. टीनेंट बोलते हैं किराएदार, जैसे किराया देना पड़ रहा हो तो जस्ट एज ए किराएदार के रूप में वो काम करते थे. एंड और किराएदार कहते हैं, किराएदार होने के साथ साथ वहाँ पे वो शेयर क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं. एंड द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. और जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी, जो मेन क्रॉप थी बाय विच दे अर्न मनी, जिससे वो पैसा कमाते थे, वो क्या था? वो इंडिगो था, वो नील था. एंड द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड देम ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो मजबूर करते थे इन लोगों को क्या करने के लिए कि जितना भी होगा या तो 3/20, 3 पार्ट आप लोग 20 पार्ट हमें दो, या फिर परसेंटेज के हिसाब से समझा है तो इन्हें मजबूर करते थे दैट दे विल कीप ओनली 15%. कि जितना भी इंडिगो होगा उसका 15% इंडियन रखेंगे. रिमेनिंग 85% दे हैव टू सरेंडर एज अ रेंट. हमारी ज़मीन है, उस पर आप काम कर रहे हो तो आपको 85% एज अ रेंट देना पड़ेगा. तो जहाँ इंडियन को कितना मिलना चाहिए था? 50%. वहाँ मिल कितना रहा था? 50%. तो ये इनजस्टिस हो रहा था. तो ब्रिटिशर्स पावरफुल थे तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये मजबूर कर दिया इंडियंस को कि आप केवल 15% देंगे, बाकी का बचा हुआ जो 85% है वो आपको एज अ रेंट हमें देना पड़ेगा. एंड दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और ये 1-2 साल के लिए नहीं होता था. दिस वॉज डन ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नहीं कि 1-2 साल, एग्रीमेंट कर लिया 10 साल का. और एग्रीमेंट में होता क्या, जैसे हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो जाए तो फिर जो भी एग्रीमेंट तोड़ेगा उसे फिर फाइन कंपनसेशन देना पड़ेगा. तो उस चक्कर में फिर लोग एग्रीमेंट तोड़ते नहीं, इसीलिए एग्रीमेंट कराया जाता कि एग्रीमेंट करिए. तो एक लंबा एग्रीमेंट करके वो लोग ऐसा कर लेते थे. तो इंडियंस को पसंद तो नहीं था ये, क्योंकि लॉस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं सकते थे. क्योंकि अगर छोड़ते तो क्या देना पड़ता? कंपनसेशन, पैसा देना पड़ता. तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी उन्हें उस पर खेती करनी पड़ती थी और केवल 15% ही देना पड़ता था. लेकिन अभी ये चल ही रहा था. तभी क्या हुआ? प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स कम टू नो दैट द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अभी तक केवल नेचुरल इंडिगो था. नाउ व्हाट हैपेंड? द ब्रिटिशर्स लर्न, द ब्रिटिशर्स केम टू नो. ब्रिटिशर्स को ये बात पता चल गई कि ये जो जर्मन्स है ना, दे हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया. एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक इंडिगो?
सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल। और अगर कुछ चीज़ आर्टिफिशियल है तो उसका प्रोडक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा आप मैन पावर लगा देंगे उतना ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर लेंगे। तो जब तक नेचुरल था, जब तक प्रोडक्शन इज लिमिटेड, यही तो था। सो लेस प्रोडक्शन मोर डिमांड, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा तो मांग ज़्यादा होगी, और जब मांग ज़्यादा होगी तो कॉस्ट विल गो हाई, कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। एंड मोर प्रोडक्शन लेस डिमांड, देन द कॉस्ट विल गो लो, कॉस्ट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो अभी तक नेचुरल इंडिगो था केवल, जब तक नेचुरल इंडिगो था तो प्रोडक्शन लिमिटेड था, प्रोडक्शन लिमिटेड था तो कॉस्ट इंडिगो का ज़्यादा था। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि आर्टिफिशियल इंडिगो आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिगो का कॉस्ट कम हो जाएगा। तो अब वो ये चाहते थे कि अगर इंडिया इस पर इंडियन खेती करेंगे तो केवल क्या उगाएंगे, वो इंडिगो ही उगाएंगे। तो उन्हें लगा कि अब हमें इन्हें इससे फ्री कर देना चाहिए, एग्रीमेंट तोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से एग्रीमेंट तोड़ते तो ब्रिटिशर्स को कंपनसेशन देना पड़ता। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे कभी कभी फ़ायदा मेरा है लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे करूँ जैसे फ़ायदा आपका। तो ब्रिटिशर्स ने उनसे ये कहा होगा दैट इट सीम्ड टू अस, हमें ये लगता है कि 15% पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक काम करेंगे, हम आपको फ्री तो कर देंगे, लेकिन वैसे तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आप लोगों को 50,000 रुपये देने चाहिए थे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50,000 का, कि 50,000 देने चाहिए थे एग्रीमेंट तोड़ने पे। आप एक काम करो, 50,000 जगह 5,000 केवल दे दो, मैं एग्रीमेंट खत्म कर दूँगा। तो जो व्यक्ति परेशान होगा 50,000 के चक्कर में कर रहा होगा, लेकिन 5,000 चक्कर में, और ये बहुत काम है, 2 काम खत्म करो। तो जहाँ ब्रिटिशर्स को इंडियंस को कंपनसेशन देना चाहिए था वहाँ उन्होंने क्या करा, कंपनसेशन ले लिया। तो उन्होंने यही कहा, दे आस्क्ड द इंडियंस टू गिव देम लिटिल कंपनसेशन टू मेक देम फ्री फ्रॉम दैट 15% अरेंजमेंट। और क्या थोड़ा थोड़ा कंपनसेशन आप दे दीजिए। क्या करें बेटा, अब आ रही है। तो जहां उन्हें देना चाहिए था उस जगह पे क्या कर रहे थे, उन्होंने इंडियंस से कंपनसेशन ले लिया और उसको फ्री कर दिया। सो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरिक्सम टू द पीजेंट्स। और अगर बात करें तो जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, इट हैज बिकम इरिक्सम। इरिक्सम से मतलब ट्रबलसम, क्योंकि बेचारे पूरे साल उस पर खेती करते थे, खाद बीज भी वही डालते थे, जुताई बुवाई भी वही करते थे, खर्चा पूरा वो करे, और जब इनकम की बात आए तो केवल कितना मिले, 15%। तो लॉस था, लेकिन छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर छोड़ते तो कंपनसेशन देना पड़ता। सो दिस सिस्टम हैज बिकम इरिक्सम फॉर देम, ट्रबलसम फॉर देम। ये जो सिस्टम था इनके लिए बहुत ही ट्रबलसम था, परेशानी वाले था। और इसीलिए क्या हुआ, a number of peasants had signed willingly। बहुत सारे किसानों ने क्या करा, willingly अपने इच्छा से तुरंत साइन कर दिए, बोले ये लो थोड़ा कंपनसेशन और हम साइन कर रहे हैं, हमें इससे फ्री करो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि एक बात में सारे एग्री कर जाए, कुछ ना कुछ तो अप्रोच करते ही। तो यहाँ पे ही वही हुआ। Those who registered engaged lawyers, some of the Indian peasants opposed. They said that no, I wanted to work only on 15%. आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं 15 में कर रहा हूँ, मुझे करने दो, मैं साइन नहीं करूँगा। And all those who registered, और जितने लोगों ने भी रजिस्टर किया, अप्रोच किया, उन सबको क्या करना पड़ा, they have to engage lawyers, उन्हें वकील रखने पड़े। मतलब the Britishers have filed a case against them, उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स ने कोर्ट में केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस है तो खुद तो नहीं लड़ सकते, वकील चाहिए, तो उन्हें वकील रखना पड़ा। तो इंडियंस ने तो वकील रखे, एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स।
लैंडलॉर्ड ने भी किसी को हायर किया और इन्होंने किसको हायर किया? थग्स को। थग्स को हिंदी में इसको बोलते हैं ठग। तब साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, डराओ धमकाओ मारो पीटो कुछ भी करो, इनसे साइन करा के लाओ। तो उन्होंने ये थग्स को हायर कर लिया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो अभी तक क्या था? The struggle was going on only between the bidders and those peasants who had not signed. अभी वही तो था, एक तरफ सारे बिड्सर्स थे, दूसरी तरफ वो किसान थे जिन्होंने साइन नहीं किया हुआ था। तभी क्या हुआ? एट द सेम टाइम what happened? The news that Germans had developed synthetic indigo, that's why they have made us free from that 15% arrangement। कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है? ब्रिटिशर्स ने जर्मन्स ने सिंथेटिक है इंडिगो डेवलप कर लिया है, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं? ये हमें इससे फ्री कर रहे हैं। सो सिंपली व्हाट दे डिड, दे सेड जस्ट गिव माय मनी बैक। फिर बेवकूफ़ बना के पैसा क्यों लिया? हमारा पूरा पैसा वापस दो। तो अब क्या हुआ? नाउ अ स्ट्रगल हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स। अब सारे इंडियन जो पैसा दे चुके थे वो भी साइड में आ गए, जिन्होंने नहीं दिया था वो सब इकट्ठे हो गए, और ब्रिटिशर्स तो थे। तो अब इन लोगों के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, एक प्रकार से लड़ाई चल रही थी इनके बीच में, और अभी ये चल ही रहा था। तभी क्या, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। सो व्हाइल दिस स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन, जब ये स्ट्रगल और ये जब क्या जो लड़ाई उनके बीच में चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, एट द सेम टाइम गांधी केम टू चंपारण। क्योंकि अभी तक गांधी कहाँ पर थे? कहाँ पर थे अभी गांधी शुरू में? ही वॉज एट मुजफ्फरपुर। लेकिन वहाँ से अगर जब ये डिस्कशन चल रहा था, जब स्ट्रगल चल रहा था, सो एट द सेम टाइम गांधी केम टू चंपारण फ्रॉम मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से वो चंपारण आ गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या करा? ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फैक्ट्स, कि वास्तव में फैक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उन सबको उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन एंड इन ऑर्डर टू गेट द फैक्ट्स। इन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले गांधी ने क्या करा? किससे मिले? He met with the secretary of British Landlord Association, और उनका लोगों से क्यों पूछूं क्या नियम और कायदे, सीधा ऑफिस जाके वहीं से पता कर लेता। So he came to the British Landlord Association, उसके ऑफिस में आए, वहाँ का जो सेक्रेटरी था उससे मिले, एंड he asked him to give him information। उससे कहा आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आप सब मुझे बताइए। लेकिन जो सेक्रेटरी था उसने क्या किया? The secretary told him that they could give no information to an outsider. The secretary said that you are not from चंपारण, आप बिहारी है ही नहीं, आप तो चंपारण के है ही नहीं। यू आर एन आउटसाइडर, आप तो अहमदाबाद के, आप तो गुजराती है, आप यहाँ के लिए क्या एक आउटसाइडर है। एंड दैट्स वाई आई कुड नॉट गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो होता है ना कि जब नीचे का ऑफिसर नहीं मानता बात तो बड़े ऑफिसर से बात करते हैं। सो द सेम थिंग हैपेंड हियर। तो गांधी ने उससे कहा दैट दो नो आई वाज नॉट एन आउटसाइडर, आई एम इंडियन, मैं इंडियन ही तो हूँ, तो मैं आउटसाइडर कहाँ हूँ? और जब मैं इंडियन हूँ सो यू शुड गिव मी द इन्फॉर्मेशन, आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बट स्टिल ही डिडंट गिव हिम, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या हुआ? नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। तो गांधी ने डिसाइड करा दैट ही वुड मीट विद द कमिश्नर, कि कमिश्नर से मिलेंगे। तो उस तिरहुत डिवीजन का जो कमिश्नर था उस कमिश्नर से मिले जाके। इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, तो जो चंपारण था वो तिरहुत डिवीजन पड़ता है, ऐसे हमारा डिस्ट्रिक्ट जालौन में, लेकिन कौन से डिवीजन में पड़ता है? झांसी।
है ना। ऐसी चंपारण डिस्ट्रिक्ट था और डिवीज़न तिरहुत था। तो तिरहुत डिवीज़न का जो कमिश्नर था उससे जाके गांधी जी मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी forthwith टू लीव तिरहुत। और जब कमिश्नर से मिले उसको बताया होगा सर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो कमिश्नर ने ये कहा नहीं नहीं मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाऊंगा, ये नहीं कहा। वो कहते हैं ही प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी। बुली का मतलब क्या होता है? बुली करना, धमकाना। तो कह रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था धमका रहा है या समझा रहा है। कभी कभी होता है ना टोन ऐसी होती है कि लोग समझा नहीं और धमका ही रहे होते कि आराम से करो। तो यही उसने कहा। सो सिंपली द कमिश्नर आस्क्ड हिम कि आपके लिए बेटर ये होगा आप इंफॉर्मेशन के चक्कर मत पड़िए, जहाँ से आए हो वहीं जाओ, और अगर नहीं गए ना तो अगर जानते हो क्या होगा। तो ऐसे कहते हैं उसने मुझे एडवाइज भी किया और बुली भी किया और मुझे बताया दैट आई मस्ट गो अवे फ्रॉम देयर, कि मुझे वहाँ से छोड़कर चला जाना चाहिए। बट गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी डरने वाले तो थे नहीं। सो ही डिडंट लीव चंपारण, चंपारण छोड़ के नहीं गए, बल्कि क्या किया? Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. So, in place of leaving Champaran, चंपारण छोड़ने की जगह ही moved ahead और आगे बढ़ गए। And now he came to Motihari, which has been considered the capital district headquarter of Champaran. जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट क्या है? जालौन कैपिटल, एक विभाग से हो रही कह सकते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है। तो ऐसे ही था, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी में था। तो गांधी जी कहाँ जाते हैं? मोतिहारी आते हैं। Several lawyers accompanied him, लेकिन अब गांधी जी अकेले नहीं। A number of lawyers were with him, बहुत सारे वकील उनके साथ आए थे। At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi, and now Gandhi has become little bit famous there. So when Gandhi get off from the train at the railway station, he found that a huge multitude, a huge crowd was greeted for him. एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उनको वेलकम कर रही थी वहाँ। He went to a house and using it as headquarters continued investigation. और यहाँ आने के बाद क्या क्या मोतिहारी में? He came to one of the house, एक घर में आए, वहाँ पे अपना ऑफिस बना लिया और आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस नहीं होगा तो आप किससे मिलेंगे? क्योंकि ऑफिसर बराबर तो एक जगह कहाँ पता कहाँ है, वो कहीं भी हो सकता है। ऑफिस है तो एक इंडिविजुअल जगह आप वहाँ जाके बने। तो इसीलिए अगर गांधी ने ऑफिस बना दिया कि अगर किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ आके शेयर कर सकता। तो बिल्डिंग में वो ऑफिस बना लिया उन्होंने। और अभी भी गांधी जी मोतिहारी में थे ही, तभी क्या हुआ? A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तभी गांधी जी के पास एक क्या रिपोर्ट आई कि एक पास के गांव में एक किसान है, ही हैज बीन मल्ट्रीटेड मतलब मिसबिहेव, कि उसके साथ क्या किया गया? मिसबिहेव किया गया है, कि ब्रिटिशर्स ने उसके साथ मिसबिहेव किया, टॉर्चर किया है उसे। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी डिसाइड करा मैं खुद जाके देखूंगा वहाँ मैटर क्या है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। सो अगले सुबह हाथी पर बैठ के गांधी जी चल दिए। He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him and ordered to return to town in his carriage. और गांधी जी अभी बहुत दूर नहीं पहुँचे थे, तभी क्या हुआ? द मैसेंजर ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट, वहाँ एसपी का मैसेंजर आया एंड ही आस्क्ड हिम टू गो बैक, और उसने कहा चलिए वापस चलिए। गांधी जी को हाथी से उतरवाया, अपनी कार में बिठाला और बिठा कर वापस कहाँ लेकर आ गए? उनके ऑफिस में लेकर आए। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। और ऑफिस लाने के बाद गांधी जी को क्या दिया? एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया। और उस नोटिस में क्या ऑर्डर था गांधी के लिए? दैट यू हैव टू क्विट द चंपारण इमीडिएटली, कि अभी के अभी आपको चंपारण छोड़कर जाना होगा। गांधी साइंड अ रिसीप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसऑबे द ऑर्डर। तो जो नोटिस होता है उस पर साइन करना होता है, तो गांधी ने साइन तो कर दिया, बट अलॉन्ग विद द साइन गांधी हैज रिटन, लेकिन के साइन के साथ साथ गांधी ने क्या लिख दिया? दैट ही वुड डिसऑबे द ऑर्डर, कि उस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, वो डिसऑबे कर देंगे। आज यहीं तक रखेंगे।